Assalamualaikum students, I hope that you are fine and safe at your homes, working well with your studies. Today is 11th December 2020 and the day is Friday, right? Now I want all of you to recall the unit which we had started in our last lesson. Who will tell me? Hania, can you tell me the name of the unit which we had started in our last lesson? Yes, I'm waiting for your answer. Yes, I did. It is unit number 9. A day in the village. A day in the village. What is a village? Yes, Shahan, what is a village? Yes, village को कहते हैं हम क्या कहते हैं? गांव कहते हैं. और हमने अपने वीडियो लेसन्स में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो क्लिप भी देखी थी जिसमें there was a family who lived in the village and they were doing different households and different activities over there which are in their daily routine. Okay, they are new to us but it's their routine. Okay, let's discuss a few points which we had watched in that particular video. It was a sight of a village, right? The two characters were, what was the name of the girl? Fatima. Yes, Nasreen was the name of the girl. And who was her brother? Subhan. Who was the brother of Nasreen? Very good. He was Anwar. They both are siblings. बिल्कुल ठीक बहन भाई है ना? तो they are siblings, right? Okay. Muhammad Ahmed, tell me that which bird was crowing? Crowing. Murga, bilkul theek. Cock. The cock was crowing in the morning. Definitely in the morning, right? And Nasreen sleeps at what thing? Aruj? Yes, she sleeps on a mat. And when she gets up, she rolls the mat and put it with the side of the wall, right? Then, what does she do after getting up in the morning? She rolls up the mat and then, from which tree she takes a stick? She takes a stick. Barina, please tell me. She takes a stick from which tree? Yes, from neem. She takes a neem stick. Right? To do what? क्या करती है स्टिक से? बहन भाई को मारती शुरू हो जाती है. नहीं, क्या करती है? सुबह उठते ही हम क्या करते हैं? What do we do when we get up early in the morning before coming to school or in our regular routine? What do we do? Please tell me. Yes, very good, very good. We do brushing of our teeth. So, in village, most of the people use neem sticks, miswak, जिसको हम कहते हैं ना, वो लेते हैं अपने दांतों की सफाई के लिए. Neem stick to clean her teeth. पाए कैसा ये? है ना? शाबाश. Okay. फिर क्या करती है वो? दांत साफ कर लिए, मैट रोल कर लिया. And what does she do? Yes, either? Yes, she goes to the pump to for what? क्यों जाती पंप में? क्या काम? Exactly,
to get water for her family. To get water. Then when she gets back home with water, what does she do? फिर इसके बाद क्या करती है वो? Zainab Adnan. Shabash. Seems that you have read the unit well. She sweeps the floor. फर्श अपना साफ करती, झाड़ू लगाती है ना. उसके बाद yes, she helps her mother. She helps her mother in doing what? She helps her mother in preparing breakfast. नाश्ता बनाने में अपनी मामा की हेल्प करती है. अच्छा, वॉश कहाँ है उनका? Yes, they don't have washes in the house. Washrooms wash in the field, right? Behind the fence. So this was the routine of Nasreen, right? Now we will talk about her brother's routine, Anwar's routine. Her brother name is Anwar. Now what does he do? He's also busy like his sister Nasreen. Nasreen was busy now. In the morning she was busy. Then we'll study about her afternoon and evening as well. But right now we're just discussing their morning routine. Anwar, why was he excited? Why? He was excited. Excited का क्या मतलब है? What do you mean by excited? Now, acha, one very important thing is that you have to keep your dictionaries with you. Okay, take pocket dictionaries. They are very important. Whenever in any of the English subjects you find difficulty or you find difficult words which you don't know the meaning of, you can open up the dictionary and start finding out the meaning, and I'm sure you'll get the meaning in the dictionary if you will have it. ओके, आप इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी लें, पॉकेट डिक्शनरी अपने पास रखें. जैसे ही इंग्लिश के सब्जेक्ट्स में आपको कोई प्रॉब्लम आती है, मुश्किल वर्ड्स आ जाते हैं, उनके मीनिंग सॉर्ट आउट करने के लिए यू शुड यूज अ डिक्शनरी. ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्साइटेड. आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे. एक्साइटेड. वेरी गुड. हम एक्साइटेड होते हैं ना जब हमने कोई काम कोई प्लानिंग की होती है अच्छी सी चीज की, तो हम एक्साइटेड होते हैं वो करने के लिए, कहीं जाने के लिए एक्साइटेड होते हैं हम, है ना, खुश, पुरजोश. राइट, ही वाज वेरी एक्साइटेड. व्हाई मोहम्मद अहमद, व्हाई वाज ही एक्साइटेड? यस, बिकॉज ही हैज टू गो टू द टाउन. With his father, right? Okay, but before that, what does he do? Fatma? Yes, goats. He takes the goats to the. कहाँ लेके जाता अपने घर में? नहीं जी, फील्ड में लेके जाता है, खेतों में लेके जाता है. एंड वी हैड डिस्कस्ड दैट व्हाई डज ही टेक द गोट्स टू द फील्ड, बिकॉज द गोट्स हैव टू ईट ग्रास फ्रॉम देयर, राइट? देन ही वाज इन द paddy, right, with his father. राइट, पैडी है ना उनकी. I'm sure my handwriting is clear enough.
He helps his father all the way in watering his paddy, and then they have to go to the town, right? Paddy of rice. चावल की जो खलियान, जो खेत होते हैं उनको पैडी कहते हैं, बिकॉज दे नीड अ लॉट ऑफ वाटर इन इट. पैडी पडल्स पढ़ा है आपने, है ना, पानी का जो कीचड़ बन जाता है मट्टी और पानी का. पैडी भी इस तरह की होती है. मैं आपको इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेसन में पैडी की वीडियो दिखाऊंगी, ठीक है, अपने लेसन के साथ. ओके, नाउ ओपन अप पेज नंबर 56 of your books. We'll be reading 56, 57 and 58 today. And we'll be discussing whatever they are doing in afternoon and in the evening of the village. Right? Please open up your books quickly. Anwar's afternoon. Page number 56. Anwar and his father get on the bus to Sahiwal. साहिवाल शहर है, आपको पता है किस सूबे में है? In which province is Sahiwal? Subhan, in which province do we live? Yes, Punjab. So Sahiwal is in Punjab. अनवर और उसके बाबा, उसके अब्बू बस पे सवार होते हैं साहिवाल जाने को. दे टेक अ बिग सैक ऑफ राइस. चावल का बड़ा सा थैला लेके चलते हैं. दे आर गोइंग टू सेल इट एट द ग्रेन मार्केट. और वो वहां पे जो अनाज मार्केट है वहां पे. अब वो क्यों लेके गए हैं चावलों का थैला? ताकि बाजार में जो अनाज की मंडी है ना वहां पे बेच दें. साहिवाल इज वेरी नॉइसी एंड डर्टी. साहिवाल में बहुत शोर है और बहुत सफाई नहीं है इतनी. goes the buses and trucks. अब बसें और ट्रक जा रहे हैं और आपको पता नहीं कितना शोर करते हैं. पैम पैम goes the cars. और गाड़ियां जा रही हैं पापा करती हुई, है ना. ये देखें, ऐसी बसें साहिवाल में चलती. लाहौर में देखी है आपने ऐसी बसें? कम देखी है ना. मेरा भी ख्याल, मैंने वैसे कम ही, बहुत ही कम देखी होंगी ऐसी कोई. ठीक. एट द मार्केट अनवर्स फादर बार्गेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. मंडी में या बाजार में अनवर के अब्बू बड़ी देर तक बहस करते रहते हैं. बार्गेन का मतलब होता है जब आपको कोई चीज खरीदनी होती है ना तो आप कीमत कम या ज्यादा करते हैं. आपको महंगी लग रही होती है ना. हमने कोई टॉय लेना है, वो हमें वो कह रहे हैं कि जी 2000 का है, लेकिन हमें बहुत महंगा लग रहा है. हम कहते हैं 1000 में दे दो. नहीं, वो कहते हैं नहीं मैं नहीं दे सकता. फिर हम कहते हैं 1200 में दे दो. फिर कहीं जाके हमें वो 1300-1400 का मिल जाता है. तो दैट इज बार्गेनिंग. एट लास्ट ही गेट्स सम मनी फॉर द राइस. आखिरकार उन्हें चावलों के कुछ दाम या पैसे मिल जाते हैं. विद द मनी, उस पैसे से दे बाय ऑयल, सॉल्ट, सोप एंड मैचेस. वो क्या क्या खरीदते हैं? ऑयल यानी तेल, नमक, साबुन और माचिस खरीदते हैं. ये आप देख रहे हैं, ये है अनाज मंडी. ठीक है, यहाँ पे मुख्तलिफ अनाज हमें मिलता है खाने की चीजें, जैसे गंदम, बाजरा और ये चावल, मकई, इस तरह की चीजें यहाँ पे मिलती हैं. देन दे गो बैक टू द बस स्टैंड. फिर वो बस स्टैंड पे वापस जाते हैं. लॉट्स ऑफ पीपल आर शाउटिंग. बहुत से लोग चिल्ला रहे हैं. समोसास, टी, बनानास. आपको पता है वहां स्टॉल्स लगे हुए होते हैं, समोसे, चाय, केले. कैन वी हैव सम बाबा? बाबा हम कुछ ले लें, उसको भूख लग गई होगी ना. अनवर सेज होपफुली. अनवर बड़ी उम्मीद से कहता है कि बाबा तो ले ही देते हैं ना चीजें. ऑल राइट बेटा, ठीक है बेटे. हिज फादर सेज, उसके अब्बू कहते हैं, आई गेट 6 बनानास. मैं 6 केले ले लेता हूं. फिर हम खाते हैं, एंजॉय करते हैं. अब पेज नंबर 57. नसरीन्स आफ्टरनून. नसरीन की दोपहर कैसी है? नसरीन इज बैक एट होम इन द विलेज. नसरीन गांव में अपने घर वापस आ जाती है.
शी इज लुकिंग आफ्टर हर लिटिल ब्रदर, वो अपने छोटे भाई का ख्याल रख रही है। शी इज कुकिंग टू, वो खाना भी बना रही है। हर मदर इज वर्किंग इन द फील्ड, वो खाना क्यों बना रही है? क्योंकि उसकी अम्मी जो हैं वो खेतों में काम कर रही हैं। और ये देख रहे हैं आप, मट्टी की हांडी में खाना बन रही है। मुझे चिकन लग रहा है अंदर। ऐसे खाना बनता है गांव में, गैस नहीं होती ना, तो ऐसे आग जला के मट्टी की हांडियों पे खाना बनता है। बड़ा टेस्टी बनता है खाना इन हांडियों में। अच्छा, नसरीन गेट्स द गोट्स फ्रॉम द फील्ड विद हर लिटिल ब्रदर। नसरीन अपने छोटे भाई के साथ बकरियों को खेतों से वापस लाती है। ऑन हर वे होम, अपने घर वापसी पे, शी पासेस द स्कूल, वो स्कूल से गुजरती है, के सामने से गुजरती है। शी थिंक्स, वो सोचती है, आई विश आई कुड गो टू स्कूल, कि काश मैं भी स्कूल जा सकती। अब वो बच्ची जो है देखिए कितने काम करती है ना, लेकिन स्कूल नहीं जाती क्योंकि उसको इतने सारे काम संभालने हैं। अपनी मदर के साथ अपने बाबा की हेल्प करती है, मदर की हेल्प करती है। ठीक है, ये देखें जी, ये फील्ड है और ये स्कूल है। कुछ बच्चियां जा भी रही हैं स्कूल, तो नसरीन बेचारी कहती है कि हाय काश मैं भी जाती ना। शी गैदर्स स्टिक्स फॉर द फायर, वो आग के लिए लकड़ियां जमा करती है। शी टाइज अप द गोट्स, वो बकरियों को बांधती है। शी गिव्स फूड टू हर ब्रदर, और अपने भाई को खाना देती है। ओह आई एम टायर्ड, ओह मैं थक गई हूं। शी थिंक्स, वो सोचती है। ये देखें, ये उनका घर आ गया, नसरीन का। ऐसे घर होते हैं ज्यादा गांव में ना, ये देखें। पेज नंबर 58, इवनिंग इन द विलेज, अब शाम कैसी होती है गांव की। अनवर एंड हिज फादर कम होम, अनवर और उसके अब्बू घर वापस आते हैं। व्हेन दे गेट ऑफ द बस इट इज क्वाइट, जब वो बस से उतरते हैं तो खामोशी होती है। द फील्ड्स आर ग्रीन एंड फुल ऑफ वाइट बर्ड्स, खेत सब्ज होते हैं और उनमें सफेद रंग के परिंदे भरे हुए होते हैं। अनवर इज हैप्पी टू बी होम, अनवर घर आके खुश होता है। माँ, ही शाउट्स, अम्मी अपनी माँ को बुलाता है, वो चीखता है। वी सोल्ड द राइस एंड डिड द शॉपिंग, हमने चावल बेचे और हमने खरीदारी की। शाबाश, ये शाबाश देती उसकी माँ। हिज मदर स्माइल्स, उसकी माँ मुस्कुराती है। एंड वी आर लकी there's a banana for each of us, और हम खुशकिस्मत हैं, लकी है कि हम दोनों के लिए एक केला भी है। हाउ स्वीट, देखिए कितनी सिंपल सी जिंदगी है उनकी, है ना, लेकिन मेहनत। ये देखें, ये सफेद परिंदे उड़े हैं ना तस्वीर में, और खेतों में खड़े हैं और बंदा कोई नहीं नजर आ रहा है ना। खामोशी है, शाम का वक्त। बहुत खूबसूरत सुबह और बहुत प्यारी शामें होती हैं गाँव की, क्योंकि नेचुरल होता है ना एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा। वहाँ पे हमें बर्ड्स भी नज़र आ जाते हैं, शहरों में तो कम हो गए बर्ड्स, और इस तरह से हम सनराइज और सनसेट को ऑब्जर्व देख नहीं पाते जैसे गांव में देखा जा सकता है, राइट। चलें, गेट बैक टू द बोर्ड नाउ। We have just read about Nasreen's afternoon and Anwar's afternoon. Let's have a comparison of both of the afternoons. Right? पहले हम करते हैं, let's discuss Nasreen's afternoon. What does she do in the afternoon? Yes, she, मोहिब क्या क्या करती है नसरीन? Right, she looks after her brother. Very good. छोटे भाई का ख्याल करती है। Then what does she do? Abdul Moiz cooks food. Very good. Then what does she do? Yes, gets goat from the field. Very right. Okay. Then what does she do for the fire? क्या जमा करती है? फिजा,
Yes, she collects sticks for the fire. And ties up the goats. Right? She looks after her brother, cooks food, gets goats from the fields, collects sticks and ties up the goats. Now we'll discuss about Anwar's afternoon. What does he do? His afternoon was enjoyable, right? He goes to Sahiwal, exactly. He goes to Sahiwal. What is Sahiwal? Yes, Aisha. Yes, exactly. Sahiwal is a city in Punjab. Then they go to the which market? Fish market? No, they go to the grain. यहाँ मनवर की करें तो goes लिखेंगे. जाता है to the grain market. Then he does shopping with his father. आप लोग करते हैं शॉपिंग अपनी माँ बाबा के साथ? किन किन चीजों की शॉपिंग करते हैं? ग्रोसरीज की करते हैं. बिल्कुल हम ग्रोसरीज की शॉपिंग करते हैं मामा बाबा के साथ. मैं जब जाती हूँ मेरे बच्चे भी जाते हैं साथ और हम इंजॉय करते हैं ना. बच्चे अपनी लेकिन कभी कभी बच्चे जो है ना वो बहुत एक्स्ट्रा चीजें डाल देते हैं हमारी ट्रॉली में. आप भी ऐसे करते हैं? नहीं ना, ऐसे नहीं करना चाहिए. क्यों? हमें अपने पेरेंट्स की मर्जी से, उनकी परमिशन से चीज उठानी चाहिए और ट्रॉली में रखनी चाहिए जिसकी जरूरत हो. आपको पता है ना, फजूल खर्ची तो नहीं करनी चाहिए. अब देखिए अनवर ने कुछ किया. अनवर ने सिर्फ अपने बाबा को खाने की चीज की डिमांड की जो उसके बाबा ने ले दी उसको. लेकिन उसने ये नहीं कहा कि मैंने यहाँ से ये टॉय भी लेना है, मैंने कैंडल्स भी लेनी है, मैंने ये भी चॉकलेट, ये वो है ना. तो next time, whenever you go for grocery with your mother or father, please don't make it difficult for them. उनकी permission से चीज उठाएं. Okay? It's very important to get permission from your parents. And then he gets bananas and gets back home. और जब वापस आते हैं तो it is very quiet and it's evening when they come back home, right? So here's the routine of Nasreen in the afternoon and Anwar in the afternoon. In our next lesson, inshallah, I'll be having a map. We'll discuss the map of a village on the board. Then we'll be watching a short video related to this grain market, right? And pottery. मैं कोशिश करूंगी आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो ढूंढूं जिसमें सारी विलेज की मजीद चीजें आपको नजर आए. एक तो हमने पहले देखी है, राइट? एंड आफ्टर दैट विल बी डूइंग रिटन वर्क. So please revise the reading of the whole unit at home. Try to learn as many spellings as you can because it's very important. And try to be fluent in your reading. Reading has to be done every day. रोजाना आपने reading करनी है. Please, we have to improve our reading skills a lot. Right? Okay. Take care. Allah Hafiz.